All right, so good evening, all of you. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. And this is the second part of topic 9. So we are doing political science optional paper 2 section 1. So back to basics quick revision series. इसमें हम लोग क्विकली सारा कंटेंट जो है समरी में देख लेते हैं एक बार. तो कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे. ठीक है सर, प्लीज स्टार्ट. Okay. India and UN peacekeeping. India is one of the founding members of United Nations. India's commitments for the maintenance of international peace have been second to none. UN peacekeeping is guided by four basic principles: consent of the parties, impartiality, non-use of force except in self-defense, defense of the mandate. India's contributions: 1950 Korean War, Medical Unit and Custodian Force for Neutral Nations Representation Commission. Indian forces saved the Gaza Strip from 1956 to 1967. 1916 Congo, on attaining independence from Belgium. In Iraq after Gulf War I, on Iraq-Kuwait border. Central America, Lebanon, Golan Heights, Rwanda, Sudan, South Sudan. Total 49 missions, sending more than 208,000 troops, highest troop contribution amongst all countries. 156 Indians have sacrificed their lives on peacekeeping mission, highest for any nation. Indian peacekeepers have been awarded with Dag Hammarskjöld Award for their supreme sacrifices. India have unique distinction of sending all-women contingent in Liberia. We also have developed a well-rounded policy on UN peacekeeping. India has established training center in Delhi under Center for UN Peacekeeping. Image of Indian peacekeepers is that they have acted in extremely professional manner. They are known for their competence and ability to establish rapport with local populations. Presently in 2019, according to UN website, 6,022 Indian troops are deployed in 9 out of 14 UN peacekeeping missions, primarily in Congo, South Sudan and Lebanon. Antonio Guterres का quote है, "It would be understatement to say that India's contribution to global peace has been remarkable." Changing role of peacekeepers. History of peacekeeping. It was formed as a tool to maintain peace and security in the conflict areas during Cold War period when UNSC had been paralyzed. First peacekeepers were sent to Arab-Israel War. They were unarmed military troops whose primary role was to monitor, report and build confidence. First armed mission, 1956 Suez Crisis. First large-scale mission, Congo Crisis. 20,000 troops were deployed. India contributed heavily in this mission. Since then, more than 70 missions have been employed by UN. Present situation of peacekeeping. Now peacekeepers are often involved in civil wars, where constitutional authority does not exist, or is often limited. Sometimes non-state actors are also involved which are not bound to follow any norms. They are also called upon to monitor humanitarian relief operations, human rights violations, assist in mine clearance, monitor state boundaries, provide civilian police support, assist infrastructure building like road, railway bridges, assist in electoral processes. Present issues in peacekeeping. Changing nature of peacekeeping as discussed above. Reluctance on part of developed countries to contribute troops for the mission. Allegations by fund contributing countries of misappropriation of funds by troop contributing countries. Some countries like Pakistan, Bangladesh look at peacekeeping as means to earn foreign exchange.
they have failed to act in responsible manner. India's demands for reforms, consultation with troop contributing countries, more funds and timely release of funds, zero tolerance towards any irresponsible behavior like sexual violence, corruption, etc. by peacekeepers. Developed countries have proposed robust peacekeeping. Since attacks against peacekeepers are increasing, they should also be allowed to keep offensive weapons. There is also objection to this idea since it will end difference between peacekeeping and collective security. This can be misutilized by developed countries who will send their forces in disguise of peacekeepers. End. कोई समराइज कर दीजिए. इसराइल, उमेश, क्रिएचर, कोई भी. हेलो. नहीं करूँगा सर समराइज. हाँ कर दीजिए. आवाज मेरी हाँ आ रही है आपकी आवाज. ओके सर करता हूँ. तो यूएन पीस कीपिंग में इंडिया इज गाइडेड बाय 4 बेसिक प्रिंसिपल. कंसेंट ऑफ द पार्टीज मींस जहां हमारी पीस कीपिंग मिशन जहां हमारा जाता है वहां पार्टी का कंसेंट होना चाहिए उस देश का. इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स, सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस इन डिफेंस ऑफ द मैंडेट. तो ये 4 पॉइंट नहीं पता, बाकी तीनों तो क्लियर है. डिफेंस ऑफ द मैंडेट. सर कोई कुछ बताएगा सर इसमें क्या है ये पॉइंट डिफेंस ऑफ द मैंडेट? सत्यम सर. क्या क्या सर डिफेंस ऑफ द मैंडेट क्या है? यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय 4 बेसिक प्रिंसिपल्स. तो चौथा क्या है? अच्छा, मतलब जो मैंडेट है ना यूएन का, उसी को डिफेंड करना है हमें. ओके. मतलब उसको मैंडेट को ब्रेक नहीं होने देना है. इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1950 में हमने कोरियन वॉर में मेडिकल यूनिट एंड कस्टोडियन फोर्स की तरह काम किया. इंडियन फोर्सेस सर्व्ड इन गाजा स्ट्रिप फ्रॉम 1956 टू 1967. 1960 में कॉन्गो में हमने काम किया एज ए पीस कीपर. ईरान इराक वॉर आफ्टर गल्फ वॉर 1. सेंट्रल अमेरिका, लेबनान, गोलन हाइट्स, सुडान, साउथ सुडान. टोटल 49 मिशन अब तक सेंड किए जा चुके हैं और इसमें 2,08,000 के करीब ट्रूप्स हमने डिप्लॉय किए हैं अब तक पीस कीपिंग में. 156 इंडियंस हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ ऑन पीस कीपिंग मिशन, हाईएस्ट ऑफ एनी नेशन. मतलब 156 के करीब हमारे ट्रूप्स मारे गए हैं. इंडियन पीस कीपर्स को डॉग हैमर जो अवार्ड भी दिया गया है बहुत सारे सुप्रीम सेक्रीफाइस. इंडिया हैव यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ सेंडिंग ऑल वुमेन. हमने वुमेन कंटिजेंट भेजा था लाइबेरिया में. हमने यूएन पीस कीपिंग को में सबसे रिस्पॉन्सिबल फोर्स की तरह काम किया है इंडियन फोर्स ने. और प्रेजेंटली 2019 में अकॉर्डिंग टू द यूएन वेबसाइट 6,022 इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉय हैं. टोटल 14 यूएन पीस कीपिंग मिशन, जिनमें से 9 में प्राइमरी साउथ सुडान, लेबनान. तो एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट सर कि अगर हम ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो ये इंडिया के कंट्रीब्यूशन को अंडर स्टेटमेंट करना होगा, अंडरमाइन करना होगा. हिस्ट्री क्या है यूएन पीस कीपिंग की? कि इट वाज फॉर्म टू एज ए टूल टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द कन्फ्लिक्टिंग एरिया. ये पीस और सिक्योरिटी के लिए कन्फ्लिक्टिंग एरिया में बनाई गई थी. फर्स्ट पीस कीपर अरब इजराइल वॉर में भेजे गए थे. उसके बाद फर्स्ट आर्म मिशन जो है वो 1956 सुएज क्राइसिस जो हुई थी उसमें भेजे गए थे. और लार्ज स्केल मिशन कॉन्गो क्राइसिस में हुए थे, जिसमें 2000 के करीब पीस कीपर्स डिप्लॉय किए गए थे. उसमें इंडियन का बहुत मतलब हैवी कंट्रीब्यूशन था. सिंस देन मोर देन 70 मिशंस हैव बीन डिप्लॉयड बाय यूएन. अब अभी पीस कीपर्स की सिचुएशन क्या है कि नाउ पीस कीपर्स बहुत सारी सिविलियन वॉर्स में इन्वॉल्व है. वहाँ पीस और वहाँ सिक्योरिटी प्रिवेल करने के लिए कुछ कई बार नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं.
सो विच आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनी नॉर्म, इसलिए हमें कई बारी मतलब फोर्स का यूज करना पड़ता है पीस कीपिंग होने की मिशन में भी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अपॉन टू मॉनिटर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस। अब क्या है कि कई जगह हमें मतलब यूएन पीस कीपर्स को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस में मदद करनी पड़ती है, डिजास्टर में मदद करनी पड़ती है। स्टेट बाउंड्री के मतलब कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी स्टेट बाउंड्री में वहाँ की आर्मी की मदद करनी पड़ती है, सिविलियन पुलिस का भी सपोर्ट करना पड़ता है। रोड, रेलवे, ब्रिजेस जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है डेवलपमेंट का, वहाँ भी कई बारी नॉन स्टेट एक्टर्स के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए मदद करनी पड़ती है। और इलेक्टोरल प्रोसेस को भी कभी कभी स्टेब्लिश करने के लिए हमें यूएन पीस की मदद ली जाती है। अभी प्रेजेंट इश्यूज क्या है कि जो पीस कीपिंग का जो नेचर है, सिक्योरिटी एंड पीस, ये चेंज हो रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर देखे बहुत सारे उनके काम, जो मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस स्टेब्लिश करना, मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करना, ये उनका काम नहीं है। फिर भी क्यों इनका नेचर चेंज हो रहा है? बिकॉज द डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही है कि वो अब अपनी ट्रूप्स का कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहती है जनरली, और फिर फंड्स का भी इशू है, वो नहीं देना चाहती है। कुछ कंट्रीज जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान लुक एट द पीस कीपिंग एज ए मीन्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। उनकी मतलब जो गरीब कंट्री है, अपनी फोर्सेस बेच के उसे उनका जो मतलब उनकी जो सैलरीज वगैरह आते हैं, जो ये जाती है, उसे अपने फॉरेन एक्सचेंज की तरह यूज करती है। दे हैव फेल्ड टू एक्ट इन रिस्पॉन्सिबल, और दैट्स व्हाई दे फेल टू एक्ट इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। इंडिया की डिमांड क्या है यूएन पीस कीपर्स के रिफॉर्म के लिए? कि कंसल्टेशन विद ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, उनसे भी बात की जाए जो उन कंट्रीज से जो ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ज्यादा फंड और टाइमली रिलीज ऑफ फंड, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाइक सेक्सुअल वायलेंस, करप्शन etc बाय पीस कीपर्स। एंड डेवलप्ड कंट्री हैव प्रपोज, उन्होंने डेवलप्ड कंट्री ने प्रपोज किया है कि रोबस्ट पीस कीपिंग का, सिंस बिकॉज पीस कीपर्स पे अटैक बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने रोबस्ट पीस कीपिंग की बात की है। दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू कीप ऑफेंसिव वेपन्स, बिकॉज पीस कीपिंग फोर्सेज आर मेन फॉर पीस, तो उनके पास ऑफेंसिव वेपन्स नहीं होते थे जनरली, वो डिफेंसिव वेपन्स रखते थे जैसे लाठी और ये सब, या वो टीजर गन। तो अभी क्या किया उन्होंने कहा है रोबस्ट पीस कीपिंग में कि वो वेपन्स जो है वो ऑफेंसिव वेपन्स रखे अपने पास। तो दिस इज इट। सत्यम सर हो गया? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, तो अब ये वाला डॉक्यूमेंट तो हो गया कंप्लीट। उस वाले में कुछ बाकी था क्या? वो हाँ, प्रोसीजर होगा ना उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट है ना उसमें एक। हाँ उसमें था ना। हाँ, उसमें एक और बचा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना है अपने बाद में। इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके पहले एक बार उधर का कर लेते हैं, आरटीपी वाला। आरटीपी पहले करे क्या? हाँ कर लो। ठीक है। Responsibility to protect is reinterpretation of the concept of sovereignty in the context of human rights. It is concept originated after the end of Cold War. The end of Cold War has resulted into rise of ethnic conflicts and civil wars. World has witnessed intra-state conflicts rather than interstate conflicts. In these conflicts, there has been violation of human rights at a mass scale. Genocide. Example Bosnia-Herzegovina, Rwanda, Sri Lanka. Civil wars created new challenges in international law. Example Article 2, Clause 7 of UN Charter. Prevents UN intervention in domestic affairs of the states. It is to be noted that UN Charter is based on the Westphalian notion of sovereignty, according to which state is sovereign and no external institution can interfere in the domestic affairs of the state.
It created dilemma for international community in the context of civil wars. Whether international community can intervene in domestic affairs for the sake of protection of human rights. Hence, a commission led by the Government of Canada came with idea of responsibility to protect. R2P redefines sovereignty. Conventional understanding of sovereignty is power of the state. R2P redefines sovereignty as responsibility rather than power. It means sovereignty is not the power of the state on the people, rather responsibility of the state to protect the rights of the people. State has been given right to use the power not to kill the people but to protect them. Prior to the nation-state, entire humanity was one. Nation-states are formed for the purpose of convenience. The primary responsibility of the protection of the right of the people is of the state. Example: the responsibility of protection of rights of the people living in the Indian territory lies with Indian state. In case state fails to fulfill its responsibility because of lack of capacity, Afghanistan at present, or state itself start violating the rights of its people, like in Myanmar Rohingya crisis, in such situation, it becomes the responsibility of international community to protect. Responsibility to protect resolutions has been adopted by the UN General Assembly. India has also been signatory to the resolution. It permits international community to intervene in case of civil wars. However, there are some guidelines. Force to be used only as last option. The use of force has to be proportionate. The use of R2P has been controversial. The two most controversial examples are Libya and Syria. As per UNSC Resolution 1973, R2P was authorized to NATO in case of the crisis in Libya because of Arab Spring. NATO was authorized only to enforce no-fly zone so that the forces of Gaddafi do not inflict excessive injuries on the civilians. However, NATO did not adhere to the resolution. Gone beyond the mandate, enter into open war with forces of Gaddafi. NATO action led to greater number of casualties. NATO's action have been condemned by Russia and China. They held that responsibility to protect has become a new discourse for Western attempt at regime change rather than protection of human rights. The experience of Libya has resulted into a situation where despite the repeated demands by the West, Russia and China did not sanction the permission for R2P in case of Syria. The action of both West and Russia and China has been responsible for continuing violation of human rights and the lack of necessary actions by United Nations. Hence, Brazil has proposed responsibility while protection. According to the resolution, it is necessary to ensure the accountability for those who implement the resolution. In case they transgress the limits, they have to be penalized. Above analysis shows that human rights becomes a discourse to advance the geopolitical interest of the countries. This itself is a biggest factor behind multiple debates and weaknesses of human rights regime. Over. समराइज कर दीजिए. स्माइल, क्रिएचर, आप लोग करना चाहेंगे? क्रिएचर सर आज एक्टिव नहीं है क्या? सर बताइए कहाँ से करना है? यही पूरा डॉक्यूमेंट. उमेश सर स्क्रॉल कीजिए. हाँ, यहाँ से. Responsibility to protect is a reinterpretation of the concept of sovereignty in the context of human rights. मतलब सर इन्होंने बताया है कि जो sovereignty का जो concept होता है उसमें responsibility की major role play करती है human rights को protect करने में. क्रिएचर सर आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, बहुत स्लो. हाँ तो सर दोबारा बता देता हूँ. इन्होंने कहा है कि जो
सोवर्निटी का मतलब जो कंसेप्ट है उसमें उसका एक रोल ये भी होता है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। फिर इन्होंने लिखा इट इज़ ए कंसेप्ट ओरिजिनेटेड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब ये कोल्ड वॉर के बाद में आया। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हैज़ रिजल्टेड इनटू द राइज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर्स। जैसे हमने देखा कि एंड ऑफ जो कोल्ड वॉर्स था उससे नए नए वे आए, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे सर ये प्रेजेंट का ही देख ले आप, यूक्रेन का, और वो वही एग्जांपल है क्योंकि कोल्ड वॉर में ही अलग हुआ था। फिर इन्होंने क्या कहे, वर्ल्ड हैज विटनेस इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स रेदर देन इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब ये हुआ सर कि उसने इंटर स्टेट मतलब यूएस ने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड और रशिया ने वो अपनी चाहिए, तो जो वहाँ पे उनके वे थे मतलब इनडायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं पे। In these conflicts, violation of human rights, बोस्निया, हर्जेगोविना, रवांडा, श्रीलंका, ये सब वो यहाँ पे हुए। फिर सर यहाँ से पढ़ना R2P रीडिफाइन सोवरेनिटी। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला है कि कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोवरेनिटी इज अ पावर ऑफ स्टेट। मतलब यही है कि सोवरेनिटी भी मतलब बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव इंटरनल बट नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के केस में जैसे सोवरेनिटी देखते हैं तो हम यूएस, जैसे यूएस ने काफ़ी मार्केट को अपने कंट्रोल में कर रखा है, तो एक तरीके की मतलब अपनी जो वे जो चीज़ें हैं वे ऑल ओवर दी वर्ल्ड थोपना चाहता है सब चीज़ों पे, तो वो होती है एक एक्सटर्नल। तो इन्होंने कहा है राइट टू पीपल रीडिफाइंस सोवरेनिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी rather देन पावर। इट मीन्स सोवरेनिटी इज नॉट ए पावर ऑफ स्टेट ऑन द पीपल, rather रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। हाँ, तो सर मतलब यही बताया है कि अगर सोवरेनिटी, अगर एक्सटर्नल सोवरेनिटी मिली है तो उनकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट वगैरह करना चाहिए। वो मतलब एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो नहीं है कि एक काइंड ऑफ पावर नहीं है कि अपनी आप अपनी पावर इस्टेब्लिश करोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उन्होंने कहा स्टेट हैज गिवन राइट टू यूज पावर नॉट टू टू प्रोटेक्ट देम। हाँ, तो इन्होंने यही कहा है कि इनको मतलब आदमियों को मारना नहीं चाहिए, उनको उनको बचाना चाहिए, ये मेन जिम्मेदारी होती है। प्रायर टू नेशन स्टेट एंटायर ह्यूमैनिटी वाज वन। मतलब यही है सर फिर कंसेप्ट है नेशन स्टेट का और स्टेट नेशन का। जो नेशन स्टेट होता है मतलब पहले जो नेशन स्टेट होता था वहाँ पे कोई मतलब यही नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद में फिर ये अपनी ये आए कि हम ज़्यादा बड़े हैं, हमारे कल्चर जो हमारी चीज़ें हैं वे ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक दूसरे पे अपनी वो इस्टेब्लिश करना चाहा, तो उसमें फिर सब चीज़ें भूल गए। फिर इन्होंने कहा नेशन स्टेट आर फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, तो यही है सर उसमें कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये कुछ हो ही गया। द प्राइम द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल इज ऑफ द स्टेट। वही है सर स्टेट की सबसे पहली ड्यूटी होती है जो स्टेट के जो पीपल्स हैं उनके राइट को बचाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडियन टेरिटरी लाइज विद इंडियन स्टेट। हाँ, तो सर यही है कि जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यही सब कुछ लिखा है, वो भारत सरकार की ही है। फिर इन केस स्टेट फेल्स टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी, अफगानिस्तान एट प्रेजेंट और स्टेट इटसेल्फ स्टार्ट वोलेटिंग द राइट्स ऑफ पीपल, म्यांमार रोहिंग्या क्राइसिस। हाँ, तो सर मतलब ये है कि जैसे म्यांमार में हमने देखा और अफगानिस्तान में देखा, रोहिंग्या का जो इश्यू था वो वहाँ पे मतलब वहाँ का इश्यू था, लेकिन वो एक ग्लोबल इश्यू हो गया क्योंकि वे उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए। वहाँ के लोग थे, अब वे वहीं पे ही नहीं है, अब वे दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि वे जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अच्छे से वे निभा ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रेजोल्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करा था, इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है, और इट परमिट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब इन्होंने यही कहा है कि अगर कोई सिविल वॉर चल रही है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इन्होंने सर दो तरीके बताए, एक तो इन्होंने बताया है, एक तो ये कह रहे हैं, उन्होंने गाइडलाइंस बताई है कि जो फोर्स है वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे जा रहे हो पहले ही अटैक वगैरह कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए।
फिर उन्होंने कहा द यूज ऑफ फोर्स हैज टू बी प्रोपोर्शनेट, मतलब जो यूज का जो मतलब जो क्या कहते हैं मतलब अपनी जो पावर लगा रहे हैं वो एक प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 100% पावर का ही इस्तेमाल कर रहे हो। एक वो होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए कि नहीं एक बार फोर्स कर रहे हैं, एक बार फिर हम लोगों को मना रहे हैं, एक बार फोर्स कर रहे हैं, एक बार मना रहे हैं, इस तरीके का होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस दबाते चले जाओगे। फिर इन्होंने कहा है कि द यूज ऑफ R2P हैज बीन कंट्रोवर्शियल, द टू मोस्ट कंट्रोवर्शियल एग्जांपल आर लीबिया एंड सीरिया। वहाँ पे सर हमने देखा है लीबिया में और सीरिया में सिविल वॉर वगैरह हुई और इन्होंने क्या कहते हैं कंट्री वगैरह ने आपस में मतलब यूएस ने उनको सप्लाई करे हैं एक को मतलब यूएस ने डेमोक्रेटिक फ्रंट को सप्लाई करे, उन्होंने दूसरी रिजीम को करे, तो मतलब यही होता चला है। फिर इन्होंने कहा है एज पर यूएनएससी रेजोल्यूशन 1973 R2P वाज ऑथोराइज्ड टू नाटो इन केस ऑफ द क्राइसिस इन लीबिया बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग। फिर इन्होंने कहा है यूएनएससी में रेजोल्यूशन हुआ था और R2P ऑथोराइज करता है एंड नाटो को अगर कुछ भी मतलब लीबिया में, क्योंकि इन्होंने लिखा था ना कि जो यूएन चार्टर का जो सेकंड है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सकती है अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन्होंने नाटो फिर इन्होंने लिखा। फिर NATO was authorized only to enforce no-fly zone so that the forces of Gaddafi do not inflict excessive injuries on the civilian. No-fly zone सर मतलब यही होता है कि जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के केस में भी कह रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन वो कर दे कि मतलब यहाँ पे कि ये नो फ्लाई जोन है, इसमें मतलब कोई एंटर नहीं कर सकता। अगर कोई मतलब अगर रशिया एंट्री करता है एयर एयर वो बोलते हैं इसको एयर सुप्रीमेसी, तो मतलब अगर रशिया एंट्री करता है तो जो नाटो की जो फोर्सेस होएगी वो उसको अटैक करेगी, तो इसलिए नाटो की जो कंट्री है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने से मना कर रही है। फिर इन्होंने कहा हाउएवर नाटो डिड नॉट एडहियर टू द रेजोल्यूशन गोन बियॉन्ड द मैंडेट एंटर्ड इनटू एन ओपन वॉर विद फोर्सेस ऑफ गद्दाफी। यही लिखा है इन्होंने कि यूएस उसके साथ इन्वॉल्व हो गया गद्दाफी की वॉर में, उनके खिलाफ हो गया। फिर उन्होंने लिखा है सर नाट सर थोड़ा नीचे करिए, हाँ सर, NATO action led to हाँ सर बस NATO action led to greater number of casualty, ये तो obviously बात है casualty involve होती ही। NATO action have been condemned by Russia and China, ये भी सर वो करते कंडेम करते क्योंकि वे डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम पे कुछ भी कर देते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ नहीं कहता उन्हें, क्योंकि सैंक्शन लगा देते हैं लोगों के ऊपर तो वे क्या ही कहेंगे। फिर है दे हेल्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हैज बिकम ए न्यू डिस्कोर्स फॉर वेस्टर्न अटेम्प्ट एट रिजीम चेंज रेदर देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। मतलब यही है कि सर कंट्री जो यूएस चाहता है कि रिजीम चेंज हो लेकिन वो उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती। फिर द एक्सपीरियंस ऑफ लीबिया हैज रिजल्टेड इन अ सिचुएशन वेयर डिस्पाइट द रिपीटेड डिमांड्स बाय द वेस्ट रशिया एंड चाइना डिड नॉट सैंक्शन द परमिशन ऑफ आरटीपी इन केस ऑफ सीरिया। तो मतलब यही है सर, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी वेस्ट कुछ अलग चाहता था, रशिया चाइना कुछ अलग चाहते थे, तो उन्होंने इनके खिलाफ इन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए, डिड नॉट सैंक्शन द परमिशन ऑफ R2P इन केस ऑफ सीरिया। द एक्शन ऑफ बोथ वेस्ट एंड रशिया एंड चाइना हैज बीन responsible for the continuing violation of human rights and lack of necessary action by the United Nations। मतलब सर यही है कि मतलब जो ज्यादातर कंट्री है वे अपनी इंटरनल सोवरेनिटी में तो मजबूत होती है लेकिन वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी में मजबूत नहीं है। तो ये जैसे ये देश है रशिया चाइना और यूएस ऑब्वियसली, तो ये जो देश होते हैं ये मतलब अपनी एक्सटर्नल सोवरेनिटी को एज ए पावर की तरह एक्सपेंड करना चाहते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू नहीं एक्सपेंड करना चाहते। फिर उन्होंने लिखा है हैंस ब्राजील हैज प्रपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल प्रोटेक्शन। मतलब सर यही है कि प्रोटेक्शन करते टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर ऑल दीज थिंग्स वाज गोइंग ऑन। फिर इन्होंने लिखा है सर अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन इट इज नेसेसरी टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंट द रिजोल्यूशन इन केस दे ट्रांसग्रेस द लिमिट्स दे हैव टू बी पेनलाइज। ऐसा कुछ नहीं होता वैसे, ये लिखा है इन्होंने कि अकाउंटेबिलिटी मतलब उनकी होनी चाहिए कि उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया और उसके बाद में फिर एक पेनल्टी भी पे करनी चाहिए, पर कोई पे नहीं करता है। Above analysis so that human rights become a discourse to advance the geopolitical interest of the countries। मतलब सर यही है कि यूएस अपने इंटरेस्ट को थोपना चाहता है और जो बाकी की जो कंट्रीज है वे अपने इंटरेस्ट को थोपना चाहती है, जिसके कारण जो ह्यूमन राइट्स जो वोलेट होते हैं वो ऑल ओवर दी
कंट्री जहाँ पे भी ये सब कुछ ये लड़ाई झगड़े होता है, मतलब जितनी भी बिग पावर्स है वो छोटी कंट्रियों को एक तरीके से दबाना चाहती है अपने इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करने के लिए। ओके, थैंक यू। अब वो खोलिए सर, ड्राइव वाला। सर ये यहीं से है कि आगे है इसके? दृश्यम सर क्या था, मैं भी भूल गया। ये पढ़ लिया था ना कल अपन ने। हाँ, ये पढ़ लिया था। आप नीचे आ जाओ। कॉफी क्लब वगैरह तो हो गए। यहाँ से करना है, यस यहाँ से करना है ना। इसके पहले एक और चीज है, फिर इसके बाद में करेंगे। वो मैंने कल इंडियन एक्सप्रेस एक आर्टिकल डाला था ना टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन के बारे में, वो भी एक बार पढ़ लेंगे इसके बाद में। ठीक है, फिर यहाँ स्टार्ट कर लेंगे। ओके, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, एम्स एंड फंक्शंस। यूएन की एजेंसीज 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक यूएन पीस कीपिंग ऑर्गन्स है, दूसरे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तीसरे फंड्स एंड प्रोग्राम्स, चौथे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो व्हाट आर एसए मतलब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज? Specialized agencies are independent autonomous organizations that are part of broader United Nations system. Do not report to UNGA or ECOSOC. Different budget होता है और different governing body होता है. May implement projects or serve as international standard setting bodies. Have their own charters, membership criteria, independent of UN membership. Specialized agencies are funded by both voluntary and assessed or mandatory contributions from their members. Have an independent agency head and governing board. तो रीजन क्या है उसका? Many highly technical issues, law जैसे सिविल एविएशन, लॉ पोस्टल का IPU 1874 कुछ है, सिविल एविएशन का है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकॉम का है ITU। ऐसे टेक्निकल इश्यूज को डील करने के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड। सम इवन प्रीडेट UN लाइक 1874 IPU। हाँ, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन होगा वो IPU, वो 1874 का बना हुआ है। 1919 का ILO बना है। वैसे ही IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे ही स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है। वो सेट इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, फैसिलिटेट ट्रेड, सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोसॉक है, वो कोऑर्डिनेट करता है UN और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। फंड्स एंड प्रोग्राम्स, नॉट UNICEF humanitarian aid to children and mothers, WFP food nutrition assistance. Related organization जो है X part of UN, मतलब क्या समझा नहीं? Not part. X मतलब? Not. It's not a part अच्छा, of not UN. okay, not part of UN.
जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी WTO, OPCW, CTBTO। हाँ, ये मतलब डायरेक्टली यूएन के पार्ट नहीं है बट रिलेटेड है ऐसे। हो गया क्या? हो गया आई थिंक। उमेश सर, मैंने एक ग्रुप में एक ये डाला है, लिंक डाला है, एक बार आप ओपन कर लेंगे वो यूएन के बारे में था, टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन के बारे में कल अपन डिस्कस करें, उसको आर्टिकल को पढ़ लेंगे एक बार क्विकली। सत्यम सर, उमेश सर आप पढ़ेंगे? सर मैं पढ़ूँ क्या सर? मैं पढ़ूँ? पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़ लीजिए। यूएनएससी रिफॉर्म्स पढ़ो क्या मैं? हाँ सर, हाँ सर। UNSC reforms, India hails text-based negotiation as historic, path-breaking. India is a strong contender for permanent UN seat if Security Council gets expanded, which is one of the most significant reform that is being discussed. The UNGA Monday chose the path of text-based negotiations for carrying out Security Council reforms, and for this purpose adopted a negotiating text by consensus, a move that was welcomed by India. India is a strong contender for permanent seat if the Security Council gets expanded, which is one of the most significant reform that is being discussed. New Delhi described the General Assembly's decision as historic and path-breaking. This is a significant development as after more than 2 decades, we can now commence a text-based negotiation so that the long pending reforms of the Security Council can और स्क्रॉल करिए थोड़ा। In New York, India's ambassador to UN, Ashok Mukherjee said, "This is the most positive and unique development as so far over the last 7 years we have only been making statements in the air or at each other with easily deniable or disputable summaries or at times compilation text to register our endeavors." The decision to adopt text-based negotiation formalizes the purpose of carrying out Security Council reforms. So far, discussions have been going on without a formal text. The decision comes on the eve of 70th session that begins on Tuesday. Nearly 200 member countries of the UN have agreed that during 17th session of UNGA, which commences tomorrow, they will have text-based negotiations on the reforms in the Security Council, the top decision-making body, which has 15 members, including 5 permanent: China, Russia, US, UK, and France. However, the US, China, and Russia did not contribute to the text, a move which was seen as an attempt to thwart India's bid for permanent membership of the global body. Though US and Russia have been supporting India's bid, China has been against any expansion of the Security Council. UNGA President Sam Kutesa, who convened
plenary meeting to take action on the draft decision of the question of equitable representation on an increase in the membership of Security Council and related matters, also circulated letters containing the position of key countries including Russia, US and China, which refused to contribute to the negotiating text. Once the draft is agreed upon by the UN member countries, it will be put to vote at the General Assembly, where a two-third vote is needed to pass it. हो गया. ओके, तो यार अपना यूएन का वाला टॉपिक तो खत्म हो गया. कुछ ऐड करना है किसी को या कुछ कहना है? दृश्यम सर, मुझे जाना पड़ेगा, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है सर? ओके, नो इश्यूज. थैंक यू सत्यम सर. बाकी किसी को ऐड करना है? बाकी किसी सर पुतिन सर यहाँ पे भी बताएंगे कुछ. सॉरी सर पुतिन सर भी है यहाँ पे भी बता सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं शायद. चलो ठीक है, किसी को कुछ ऐड नहीं करना है तो लेट्स end the recording here. Thank you very much everyone who participated, and for those who are watching on YouTube, please like, share and subscribe to our channel. कल हम लोग टॉपिक टाइम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच.